خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاک فوج نے انڈین آرمی کی نااہلی پر بھارتی موقف مسترد کر دیا۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ بھارتی میزائل گرنے کے واقعے سے بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ ایسے واقعات خطے کے امن کے لیے خطرناک ہیں۔ پاک فوج کا بھارتی حکومت کے موقف پر شدید رد عمل۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں خطے کی صورتحال اور اہم عالمی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں شرکاء نے بھارتی میزائل فائرنگ کے حالیہ واقعے کا تشویش کے ساتھ جائزہ لیا۔ کور کمانڈر نے مطالبہ کیا کہ بھارتی غلطی کے اعتراف کے باوجود عالمی فورمز واقعے کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ بھارتی اسٹریٹجک اثاثوں کے تحفظ، حفاظتی پروٹوکول کی جانچ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے خطرناک واقعات کسی بڑے ثانیہ کا محرک بننے کے ساتھ علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی اندرونی سیکیورٹی صورتحال اور مغربی بارڈرز کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے ہدایت کی کہ 23 مارچ کی پریڈ اور OIC وزرائے خارجہ کا کانفرنس کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے۔ بھارتی وزیر دفاع نے نااہل بھارتی فوج کی غلطی تسلیم کر لی۔ بولے واقعہ ذمہ داروں کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے پیش آیا۔ ادھر چین نے بھارت سے اس واقعے کی سنجیدہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم امریکہ نے اس سنگین نوعیت کے واقعے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ بھارتی افواج کو نئی ذلت اور رسوائی کا سامنا۔ بھارتی وزیر دفاع نے خود ہی اپنی نااہل فوج کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مارچ کو میزائل کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ واقعہ حادثاتی طور پر ہوا۔ بعد میں علم ہوا کہ میزائل پاکستان کی حدود میں گرا۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایوان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارتی میزائل سسٹم سے دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ ادھر ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی میزائل کے پاکستانی حدود میں گرنے کے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت واقعے کا بغور جائزہ لیں اور ایسے واقعات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کے واقعے پر تبصرے سے انکار کر دیا۔ Well, we have no indication, as you also heard from our Indian partners, that this incident was anything other than an accident. We refer you, of course, to the Indian Ministry of Defense for any follow-up. They issued a statement on March 9th to explain precisely what had happened. We don't have a comment beyond that. ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھارتی حکام سے سنا کہ یہ واقعہ ایک حادثے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بھارت میں یورینیم چوری اور گرفتاریوں کا علم نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت OIC اجلاس سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ OIC اجلاس میں امت مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مشاورت کی جائے۔ پوری دنیا نے افغانستان میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کشمیر اور فلسطین کے عوام انصاف کے منتظر ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے بھارتی میزائل کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ میزائل کس طرح پاکستان کی حدود میں گرا، بھارت وضاحت دے۔ وزیر خارجہ نے بھارتی میزائل کے معاملے پر اقوام متحدہ سے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے بتایا کہ میری اقوام وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد منظور کی ہے۔ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ شہر اقتدار میں کپتان نے ایک اور دھواں دھار سیاسی اننگز۔ بولے 3 کٹ پتلیوں نے عدم اعتماد پیش کر کے میری پارٹی کو کھڑا کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنا مقدمہ اوورسیز کنونشن میں پیش کیا۔ اپوزیشن والے پیسے کی خاطر ملک بیچنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم کا اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔ بولے بھارتی صحافی نے کتاب میں لکھا، نواز شریف نے فوج سے ڈر کر نیپال میں مودی سے ملاقات کی۔ فوج نہ ہوتی تو یہ ملک کے ٹکڑے کروا دیتا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ब्रेक के बाद आपको बताएं, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर बैठकों और राब्तों का सिलसिला जारी है। PTM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की तफसीलात जानते हैं अलमदार बलोच से, जो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। अलमदार, बताइएगा PTM की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में अब तक कौन कौन शरीक हुए हैं और इजलास का मेन एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जब से तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है उसके बाद शहर इक़्तिदार में जो है राब्तों का सिलसिला, मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। अहम बैठकें की जा रही हैं। इसी तनाजुर में जो है PTM की जो स्टीयरिंग कमेटी है वो भी सर जोड़कर बैठ गई है और जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की उस पर बातचीत की जा रही है। तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन की हिकमत अमली पर मशावरत की जा रही है और साथ साथ जो PTM की जमातों ने 23 मार्च की कॉल दी हुई है, लॉन्ग मार्च की, उस पर भी मशावरत की जा रही है कि उसकी हिकमत अमली क्या होगी और काफिले जो रवाना होंगे मुल्क भर से, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, वो जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनका इंतजामात क्या होंगे और कहां पर जो है वो जो है मेन जो है वो स्टेज सजाया जाएगा, तो इस पर बातचीत की जाएगी। और इसके साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कानूनी पहलू हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, उन पर भी गौर किया जाएगा। तो इस वक्त शहर इक़्तिदार का जो सियासी दर्जा हरारत है वो गर्म है और अहम बैठकें, मुलाकातें जारी हैं। कहीं पर अपोजिशन और इत्तेहादियों की मुलाकातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत की बैठकें सज रही हैं। लॉन्ग मार्च पर बात की जा रही है। अलमदार बलोच तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक अदम एतमाद का मामला, चेयरमैन सेनेट सियासी माहौल में सरगर्म। सादिक संजरानी की जानिब से सरदार अख्तर मेंगल के एजाज में अशाइये में BNP के सेनेटर्स, MNAs और MPs भी शरीक। सादिक संजरानी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इस हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान चौधरी से। जी कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माहौल में मौजूदा सरगर्म हुए हैं और सरदार अख्तर मेंगल के एजाज में मुशाया दिया है, जिसमें मेंगल के सेनेटर, MNAs और MPA भी शरीक में। बाद में मुशाया किया जा रहा है सरकार दरमियान मुल्की मजमूई सियासी पर जो तबादला दोनों मौजूदा जो सियासी है उस पर मुशाया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत जारी है। कामरान चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुहिम जोई, फाइनल मुशावरत के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइश का हम मरकज बन गई। अपोजिशन रहनुमा और हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकातें। अपोजिशन ने मुत्तहिदा से तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत और तामुन मांग लिया। दोनों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन सरगर्म। शहर इक़्तिदार में जोड़ तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। MQM के वफ्द ने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक शामिल थे। मुलाकात में सियासी राब्तों का सिलसिला जारी रखने पर मुशावरत की गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपोजिशन कायदीन को कल मुलाकात की दावत दी। बैठक पार्लियामेंट लॉज सजेगी। जो है वो अव्वल तो आज वाज़ेह कर देते, अगर ये अजलास आगे ना, हर इत्तेहादी को ऐवान के अंदर भी फैसला करना है और अवाम की अदालत में भी फैसला करना है। जो भी इस महंगाई की हुकूमत को वोट देगा, अगले इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम उससे बदतरीन इंतकाम ले। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और मार्च के हवाले से मुशावरत की गई। हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल भी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पहुँचे। दोनों ने सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बगदाद के इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में पाकिस्तान सिंगल कंट्री नुमाइश मुनक्किद हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की 84 कंपनियां अपने स्टॉल्स लगा रही हैं। नुमाइश से पहले मॉल ऑफ बगदाद को पाकिस्तानी परचम का रंग उड़ा दिया गया। हिमानी हर्बल्स के CEO मुस्तफा हिमानी का कहना है कि इराक एक बड़ी मार्केट है। नुमाइश से पाकिस्तान और इराक के तजारती ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। इराक में मुतय्यन पाकिस्तानी सफारतकारों की बेहतरीन काविशों ने तारीख बदल दी। इराक पाकिस्तानी मसनूआत का मरकज बनने लगा। 84 सिंगल कंट्री नुमाइश का आगाज हो गया, जिसके साथ ही इराक की सरजमीन पर तारीख में पहली बार सब्ज हिलाली परचमों की बहार भी आ गई। बगदाद की फजाओं में कतार दर कतार पाकिस्तानी परचम लहराने लगे। बगदाद माल ने भी पाकिस्तानी परचम का रंग ओढ़ लिया। इराक में सफीर पाकिस्तान अहमद अमजद की शबाना रोज सफारती काविशें रंग लाने लगी।
बगदाद में पाकिस्तान सिंगल कंट्री नुमाइश में 84 कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इस हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीब का आगाज दोनों मुल्कों के कौमी तरानों से किया गया, जिसमें दोनों ममालिक के सफारती हुक्काम के अलावा इराक के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर तिजारत समेत दिगर वज़रा ने शिरकत की। CEO हिमानी हर्बल्स मुस्तफ़ा हिमानी का कहना था कि ये नुमाइश पाकिस्तान और इराक की तारीख की पहली नुमाइश है। इराक एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत के लिए बहुत गुंजाइश मौजूद है। सबसे पहला जो हमारा हर्डल था वो बैंकिंग चैनल्स था। यहाँ बैंकिंग चैनल्स पाकिस्तान और इराक के दरमियान नहीं था, तो सबसे पहले एम्बेसडर साहब ने जो है उसको कायम किया, पाकिस्तानी कंपनियों को कांटेक्ट किया, हमने उनको इनकरेज किया कि आप आइए, इराक आइए और इराक में जो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, इंट्रोड्यूस करें। इट्स अ वेरी गुड मार्केट, दे हैव अ वेरी गुड बॉर्डर ट्रेड विद टर्की, दे हैव अ वेरी गुड बॉर्डर ट्रेड विद अदर कंट्रीज, अदर नेबरिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा कि इराक के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले माली रुकावटों को दूर किया गया। इस हवाले से इराक की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दोनों ममालिक के खारजा वजारतों ने भी अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान ने भी बहुत साथ दिया। मुस्तफ़ा हिमानी का कहना था कि नुमाइश से पाकिस्तान की मसनूआत दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में मदद मिलेगी। नुमाइश के दौरान बगदाद शहर में जगह जगह पाकिस्तान के परचम सजाए गए हैं और बगदाद माल को भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग दिया गया है। और सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।